government manage this debt? It is only managed by the money that the taxpayer gives. So it is only harmful for the nation. Second, ladies and gentlemen, I would like to talk about that it does create employment and investment. Now, you may say, how is that? Now, let me cite before an example. In our nation, there is a scheme called Ayushman Bharat. Now, under Ayushman Bharat, a citizen that is the beneficiary can approach both the private as well as the government hospitals. Now, understand something. It lessens the burden of government, which already has in developing nations to a certain extent certain dilapidated infrastructure. So when people go to the public hospital, the private hospitals, it creates employment also because private hospitals are going to employ people. Now, thirdly, ladies and gentlemen, let me talk about from the perspective of financial discipline. We have to understand something here. That often at times public sector units, it does not matter if they are making profit or they are in loss, the government of the developing nations still gives them funds. Now, this is wrong because this creates a lackadaisical attitude. We have to bear in mind the consumer satisfaction part of it, that the citizens must get adequate services. So, if there is a lackadaisical attitude or apathetic attitude, this will not work. So, the prospect of privatization even will keep the authorities on their toes. Fourth, ladies and gentlemen, I would like to talk about is that it will help to keep the prices in check. Now, how is that? Because when private players enter, it is not that a monopoly can be entertained. For example, many of our gentlemen present here talked about the privatization, that the auction for telecoms. So they were talking about the monopoly that Starlink would have created. So now understand, even if Jio or any other company would have come, it would have created problems. So with that, ladies and gentlemen, I would like to end my argument. Thank you so much. Now Team Gandhi against. Please introduce yourself and your team. Hi, I am Krishna Shukla and I am representing Team Gandhi in the earliest portion of our debate topic. Yes. Privatization like giving public services in the hands of public entities is a very complex issue, especially for developing nations. In the context, privatization is actually a very trending concept in the recent decades. When major organizations like IMF and World Bank are actually promoting it. But the problem here is that in developing nations, a large portion of population is low income. So if we sell some important services, for example water supply, अब बात ये हो जाएगी कि एक डेवलपिंग नेशन से मेजर पोर्शन होता है लार्ज लो इनकम का. अब इसमें अगर एक ट्राइबल कम्युनिटी की तरफ हम देखें तो अगर वो बेच भी रहे हैं तो महंगे में बेचेंगे. और उससे बड़ी बात है कि अगर गवर्नमेंट वहाँ पे जाती है तो ट्राइबल्स में हम एग्जाम्पल ले सकते हैं कि ट्राइबल्स के जो पीपल हैं वो उन्हें बहुत यूज किया जाता है माइनिंग के केस में, जहाँ पे उन्हें पैसे दिया जाता है बहुत कम एज कम्पेयर टू गवर्नमेंट जो है जब प्रमोट कर रही है तो वो एक स्टैंडर्ड प्राइस दे रही है. बट फॉर एग्जांपल हम ले सकते हैं बिहार में बहुत सारी प्राइवेट कंपनीज गई हैं जो एक्चुअल में बहुत कम वेजेस में दे रही है. और अगर हम बात कर रहे हैं कि प्राइवेटाइजेशन क्रिएट करती है एम्प्लॉयमेंट, बट एक डिस्ट्रेस क्रिएट करती है कि गवर्नमेंट जॉब्स में जो है आपको 45 आवर्स पर वीक काम करना है. अब बात यह है डेवलपिंग नेशन के मेजर पोर्शन के पास वक्त नहीं है और हम एग्जाम्पल देखें तो सर्विसेज जो है वो प्राइवेटाइजेशन को मतलब दिया जा रहा है. तो अगर बात यह है कि अगर एजुकेशन प्राइवेट सेक्टर को ही सिर्फ दिया जाएगा तो बात यह है वहाँ पे हो जाएगा कि उन्हीं के पास पूरा सेक्टर है. अब वो चाहें तो प्राइस बढ़ा भी सकते हैं डायरेक्टली, कोई हमारे पास ऑप्शन नहीं होगा क्योंकि कोई उनके उसमें है नहीं कि मोनोपोली सबसे बड़ा यहाँ पे कॉन्सेप्ट बन जाता है. और अगर ये ना मिले तो अब बात यह है कि वो जहाँ
एजुकेशन अगर नहीं मिलेगी तो अब लास्ट क्वेश्चन के पास काम नहीं है। अगर आप काम उन्हें ले भी रहे हैं कि लोग जिनके पास लो एक्सपीरियंस है या फिर इतना ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं है, तो अब उन्हें एक क्रिस्टेशन क्रिएट किया जाता है कि भले गवर्नमेंट ने कहा है कि 45 आवर्स से ज़्यादा काम नहीं करना है, बट लोग गवर्नमेंट एरियाज में मतलब रूरल एरियाज में देख सकते हैं कि now team Gandhi is given 2 minutes, 1 minute for their question and for the views also. जैन, जैसा कि इन्होंने कहा कि बिहार में प्रॉपरली वेजेस नहीं मिल रहे हैं, तो मैं जानना चाहता हूं कि क्या पब्लिक सेक्टर के जो कॉन्स्टेंटली पेपर लीक हो रहे हैं उससे क्या जॉब मिल रही है? और दूसरी चीज आपने बोला कि मैं जो बताना चाहता हूं वो ये है कि प्राइवेटाइजेशन को लाने से क्वालिटी इंप्रूव होती है, कटिंग एज टेक्नोलॉजी आती है, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड सेट होते हैं, और एक जो बहुत ही इसका बड़ा बेनिफिट होता है वो होता है कि लोगों की इनकम इंक्रीज होती है। आपने जिस तरह से कहा कि मैं कहना चाहूंगा कि आपने जिस तरह से दिखाया कि प्राइवेट सेक्टर्स मतलब हम मोनोपोली क्रिएट कर रहे हैं, तो बाय द वे क्या गवर्नमेंट की मोनोपोली होने से करप्शन के चांसेस नहीं बढ़ जाते? आप जिस चीज की बात कर रहे हैं वो मोनोपोली है, वो प्राइवेटाइजेशन नहीं है। प्राइवेटाइजेशन का मतलब होगा और भी ज्यादा प्लेयर्स को इनवाइट करें, पर आप मोनोपोली की बात कर रहे हैं। Now team again for a counter reply. फॉर एग्जांपल अब हम मोनोपोली का आपने केस बताया है, तो गवर्नमेंट को एक्चुअल में एक मतलब एक ट्रायंगल आ जाता है कि अगर जो बेसिक जगह है जो वहाँ पे है, अगर गवर्नमेंट को पूरी तरीके से कम्प्लीटली हटा दिया जाएगा तो अब प्राइवेट सेक्टर एक्चुअल में प्राइस क्रिएट कर सकता है। हम साउथ अफ्रीकन जो है अफ्रीकन कंट्रीज में का एग्जांपल ले सकते हैं कि वहाँ पे उन्होंने सिर्फ प्राइवेटाइजेशन को अप्लाई किया है, बट बहुत सी कंट्रीज वहाँ पे जो है वो एक्चुअल में आप जब वहाँ पे एग्जांपल दे सकते हैं कि वहाँ पे वॉर ही चलती रहती है लगभग लास्ट क्वेश्चन तो एक्चुअल में वर्क I will counter your argument on the you said कि You have अगर हम only लोग 30 जॉब seconds to reply. ओके आपने कहा कि आप जॉब के लिए प्राइवेट कंपनी को हायर करना चाहते हैं जो कि एग्जाम करवाए और आप पेपर लीकेज को रोकना चाहते हैं। आप प्राइवेट कंपनी नहीं है, आप गवर्नमेंट के लिए लोग चुनना चाह रहे हैं और उसके लिए आप एक प्राइवेट सेक्टर इंट्रोड्यूस करना चाह रहे हैं जो कि उसके लिए सिलेक्शन करेगा। ये आपको नहीं लगता कि कहीं ना कहीं गलत होगा? क्योंकि प्राइवेट कंपनी है वो आपको क्या कहते हैं आपके गवर्नमेंट में जो है काम करने के लिए आप उसको ला रहे हैं और उसके हायरिंग के लिए प्राइवेट सेक्टर ले रहे हैं। Now reply from team Ford. आप गलत समझ रहे हैं, हमें पेपर नहीं करानी है प्राइवेट सेक्टर से, वो गवर्नमेंट की प्रॉब्लम है, गवर्नमेंट लीक हो रही है, उसकी वजह से जॉब्स नहीं मिल पा रहे और जॉब्स को दिलाने के लिए हमें प्राइवेटाइजेशन को इंक्लूड करना होगा। आपने कहा कि मेरा सिंपल सा सवाल है कि आप गवर्नमेंट की करप्शन रोक सकते हैं? आपको मारुति स्कैंडल याद नहीं है, चारा घोटाला याद नहीं है बिहार का? In a world where budgets are constant, how do you propose government fund essential services sustainably without government partnership? Now both the teams are given 2 minutes for the reply also and for the question also. 2 minutes to both the teams. We will start with the teams. हम ये बोलना चाहेंगे कि आपने एक बात कही कि गवर्नमेंट एग्जाम में वो प्रॉब्लम कर रही है, बट उससे गवर्नमेंट को बदलने की जरूरत है। गवर्नमेंट भी हम ही लोगों में से एक उठ के जाती है, तो हम गवर्नमेंट को ना कि चेंज करें, हम अपनी सरकार बदले, सरकार में सुधार लाए, ना कि इन चीज़ों को प्राइवेट करते जाएं।
अगर आप प्राइवेटाइजेशन को इंक्रीज कर रहे हैं तो आप डिफेंस सेक्टर को जो है हालांकि